Hi Futures Doctors. This time I'm coming with the second video and it's all about tips and tricks about PMT.com. And once again, very welcome to tips and tricks about PMT.com. This video is all about to human health and disease. And one thing I will tell you before going to anything process. One in NCRT there is a clearly mention. Healthy doesn't mean disease free. Healthy means you have to perfect in social, mental, and physical. That's the key of healthy. And no main thing I will which I'm going to tell you. I made some tips and tricks to remember bacterial disease, viral disease, and protozoan disease. How we can remember that all it is, as well their pathogen and their treatments and their some symptoms. I will try to include all these things on my trips so you can remember all that all disease and you can solve question easily. So I'm going to tell you one by one. First, we are talking about bacterial disease. There are nine. I'm telling you on the behalf of NCRT. So, if you are talking about bacterial disease, there is nine disease: tuberculosis, diphtheria, leprosy, plague, tetanus, typhoid, dysentery, plague, diphtheria. These all are bacterial disease. Now, if you are talking about viral disease, there are few like polio, influenza, measles, chickenpox, dengue fever, rabies, swine flu, hepatitis, and they are all types like A, B, C, D, E, and there are some protozoans, malaria, amoeba. So this time I made a tricks about bacterial disease only. So I'm telling you bacterial disease tips and tricks, and next video I will tell you about viral disease and viral disease and as well as proton disease. So let's start. This trip actually I made this trip tricks in Hindi, so you can easily remember that thing. If you are talking about tuberculosis, that is TB. You know, tuberculosis. Their protozoans is mycotuberculosis. I don't know how to I will I'm little confused how to share my tricks with you. So I hope you will understand my situation because I'm not expert here. So I'm telling you, and my main motto is I have to share these things so you can also benefit it from um, these trips and you can easily solve your problem. This is my main motto, and I am here only for these things. And I hope if you have any ideas regarding this condition, so let's start. अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस में हमें इस तरह से याद करना है, ट्यूब लगाने माइकोट्यूबर गया, माइकोबैक्टीरिया, आप प्रोटोजोन्स देखो माइकोट्यूबर है वहाँ उसको देखो. अब मैं फिर सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ. वहाँ उसको फीवर हो गया, वीकनेस हो गया और ब्रीथनेस हो गया. फिर नो डॉट्स और मेंटॉक्स के पास गया, और ये जो नो डॉट्स और मेंटॉक्स है ये उसका ट्रीटमेंट हो गया. तो देखो फर्स्ट तो मैंने टीबी के बारे में बताया. अब देखो इस सेंटेंस को याद रखोगे तो होल डिजीज़, उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट सब आया. जैसे कि अगर मैं बात करूँ ट्यूबरक्लोसिस की, तो देखो ट्यूबरक्लोसिस को मैंने ट्यूब लिख दिया. ट्यूब लगाने माइकोट्यूबर गया. अब माइकोट्यूबर को आप समझ ही जाओगे माइकोबैक्टीरियम है ये. उसके बाद ट्यूब वहाँ उसको फीवर, वीकनेस, ब्रीथनेस हो गया. इतने दिस आर सिम्टम्स. उसके बाद फिर नो डॉट्स और मेंटॉक्स के पास गया. यहाँ नो डॉट मेंटॉक्स मैंने एक एज ए पीपल लिया है, लेकिन नो डॉट्स और मेंटॉक्स ये इसका ट्रीटमेंट हो गया है. ओके, अब मैं बात करता हूँ डिप्थेरिया की. तो डिप्थेरिया को मैंने यहाँ डिप्थी से
कंपेयर करा। दीप्ति अपनी फ्रेंड्स कोरियन बैक्टीरियम डिप्थेरी के पास गई। दीप्ति इक्वल टू इट मीन्स डिप्थेरिया। दीप्ति अपने फ्रेंड्स कोरियन बैक्टीरियम डिप्थेरी के पास गई। वहाँ देखी कि उनको हाई फीवर था, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। यह देख के शॉक हो गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दीप्ति अपने फ्रेंड्स कोरियन बैक्टीरियम डिप्थेरी के पास गई। वहाँ देखी कि उनको हाई फीवर था, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ये देखकर वो शॉक हो गई। इट मीन्स ये तो जो उनको हो रहा था वो सिम्टम्स हो गया। शॉक मतलब यहाँ पे सिक टेस्ट, इसका जो डिप्थीरिया का जो टेस्ट है वो सिक टेस्ट है। और उसके बाद मैं फिर थर्ड वोपिंग कप की बात करूँ, जिसको प्राइटस और 100 डेज कप भी कहते हैं। तो इसको मैंने ये ऐसे था, 100 दिन से वोपिंग करते करते बोर हो गई। 100 दिन से वोपिंग करते करते बोर हो गई। यहाँ पे 100 दिन उसको जो उसका जो नेम है मैंने वो मेंशन कर दिया। बोर हो गई, बोर्डेला फ्रेस्टिस इसका जो पैथोजन है। फिर अगर मैं कॉलेरा की बात करूँ तो कॉलेरा में कॉलेरा अपनी फ्रेंड्स विब्रियो के पास गई तो देखी कि दे हाथ में डायरी लेके वॉमिटिंग कर रही थी। वो अपने फ्रेंड्स के पास गई तो वो दे हाथ में डायरी लेकर वॉमिटिंग कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे दे हाथ को डिहाइड्रेशन को दे हाथ से यहाँ पे मेंशन करा। और डायरी इट मीन्स डायरिया, और वॉमिटिंग तो आप समझ ही रहे हो। तो मैं फिर से बताऊँ, कॉलेरा अपनी फ्रेंड्स विब्रियो के पास गई तो देखी कि दे हाथ में डायरी लेके वॉमिटिंग कर रही थी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और मैं फिर टेटनस की बात करूँ, जिसको लैक्सजॉ भी कहते हैं। इसमें मैंने बनाया टीटू अपनी जीएफ टेटनी से मिलने गया। टेटनी इसका जो पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम टेटनी। टीटू अपनी जीएफ टेटनी से मिलने गई। फिर मैं लेप्रोसी की बात करूं तो जिसको अपन लोग हैंसन्स डिजीज़ भी कहते हैं। हैंसन्स के लिप पे एक डिजीज़ हुआ। लिप मैंने इसलिए मेंशन करा कि लिप से आप लेप्रोसी याद कर सको। हैंसन्स के लिप पे एक डिजीज़ हुआ। वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री को साथ लेके मल्टी ड्रग थेरेपी कराने गया। मतलब वो अपने फ्रेंड के पास गया या फिर हैंसन के लिप पे एक डिजीज़ हुआ, वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, आप तो समझ ही गए, को साथ ले करके मल्टी ड्रग थेरेपी कराने गया। मल्टी ड्रग थेरेपी इसका ट्रीटमेंट है। फिर मैं 7th में अगर बात करूँ प्लेग की, प्लेग को ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। और ब्लैक डेथ में मैंने बनाया है, थोड़ा सा ये फनी है और ये रिसेंटली लिखा है। प्लेग, जिसके पास ब्लैक मनी होता है वो पल पल मर रहा है। यू नो, ब्लैक मतलब डेथ, पल मतलब प्लेग, पल पर मर रहा है। यर्सिना पेस्टिस जिसका नाम पहले पेस्ट्रोला पेस्टिस था। नोट बंद होने की खबर सुनते ही फीवर, हेडेक, एक्सिलरी लंप और नोड में अचानक से उसका इलाज होने लगा। उसके पास मतलब जिसके पास ब्लैक मतलब डेथ मनी होता है वो पल पल मर रहा है। यर्सिना पेस्टिस जिसका नाम पहले पर्सिला पेस्टिस था। नोट बंद होने की खबर सुनते ही, अब जो मैं बोलूँगा जो उसको हो रहा है वो सिम्टम्स हो गया। नोट बंद होने की खबर सुनते ही हाई फीवर, हेडेक, एक्सिलरी लिम्फ नोडेक में अचानक इनलार्जमेंट होने लगा। ये प्लेग का है, थोड़ा फनी है। उसके बाद फिर टाइफाइड की बात करूँ। टाइफाइड को मैंने मेरी मेलन अपने साथ सल्मा मैंने इसलिए लिखा सोलेमोनेला टाइफी। मेरी मेलन अपने साथ सल्मा को लेके आई। सल्मा को देखते ही मेरा फीवर, मैरी मेलन जो थी अपनी साथ में सल्मा को लेके मेरे घर आई। सल्मा को देखते ही मेरा फीवर 39 से 40 डिग्री हो गया। वीकनेस हो गया, स्टोमक पेन, कंस्टिपेशन, और विदा हो गई, नहीं तो मैं मरते मरते बच गया। ये सुन ली। अब मैं इससे कोरिलेट करता हूँ। मैरी मेलन, अब ये तो कैरियर का नाम है, अपने साथ सल्मा को लेके आई। सल्मा मतलब सोलेमोनेला टाइफी।
सलमा को देखते ही मेरा अब मैं सिम्टम्स पे आ गया। मेरा फीवर 39 to 40 डिग्री हो गया, वीकनेस होने लगा, स्टोमक पेन होने लगा, कंस्टिपेशन। अच्छा हुआ विदा हो गई, नहीं तो मैं मरते मरते बच गया। विदा मतलब वाइडल टेस्ट, विदा मतलब वाइडल टेस्ट, और मरते मरते बच गए। इट मीन्स ये टाइफाइड ऐसा डिजीज होता है कि समटाइम्स बंदे की जान तक जाने की कंडीशन हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया मरते मरते बच गया। अगर मैं 9th निमोनिया की बात करूँ, एसपी स्ट्रेप्टो को मैंने एसपी से, और एसपी जो यहाँ मैंने एसपी और हेमा आई को दो वर्ड्स लिए हैं। एसपी को मैंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हेमा को हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, तो मैंने इसको लिखा है एसपी और हेमा आई। और सेवरल रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाई, एसपी और हेमा आई। एसपी आप समझ गए, मैं पहले ही बोल दिया हूँ, एसपी मतलब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई को मैंने एसपी डिनोट करा है। और उसके बाद हेमा आई को मैं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई नोटिस करा। तो निमोनिया का है एसपी और हेमा आई और सेवरल रिस्पिरेशन डिजीज लाई, क्योंकि ये निमोनिया में जो होता है सेवरल रिस्पिरेशन डिजीज होता है। उसके बाद 10 है डिसेंट्री का, जो अभी मैं बनाया नहीं है, लेकिन सोचा कि कम से कम 9th आपके साथ शेयर करूं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड आई नो आई एम आल्सो बिगिनर, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीवर दिस ट्रिक्स टू आप लोग के पास। आई डोंट नो, पता नहीं ये वीडियो सही भी बन रहा है या गलत बन रहा है, बट माई मेन मोटो इज़ बूस्ट योर सेल्फ एंड बूस्ट माई सेल्फ टू। अगर आपके पास भी कोई भी ट्रिक्स है या कुछ भी पीएमटी के रिगार्डिंग, तो आप डेफिनेटली हमें शेयर करें और हम उन्हें सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।